Hello, good morning students. Welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth Chhapra. Dear student, today we will start the chapter Triangle for class 9th. In this chapter, you will learn congruence of triangle. First of all, congruent figures. What are congruent figures? Congruent figures क्या हैं? The figures having same shape and size are known as congruent figures. वैसे figures जिसका shape और size सेम हो उसको हम लोग congruent figures कहते हैं. तो इसका यह जो देख रहे हैं, जो सिंबल यह देख रहे हैं आप, दिस वन इज द symbol of congruence. In day-to-day life, we across many examples of congruent figures like saving blade of same brand, coins of same value, bricks of same brand are some examples of congruent figures. Some types of congruent figures. Two line segments are congruent if they have same length. Two line segments को हम लोग congruent कहेंगे यदि उनका लेंथ जो है सेम हो. Here two line segments are given, line segment AB and CD. If the length of AB and CD are equal, if AB is equal to CD, then we can say AB congruent to CD. Next point is two angles are congruent if they have same measure. Two angles को हम लोग congruent कहेंगे यदि उनका measure same हो. Here again two angles are given, angle AOB and angle CDE. If angle AOB is equal to angle CDE, then angle AOB congruent to angle CDE. Now, two squares are congruent if they have same side length. Here two squares are again given, ABCD and EFGH. If AB equal to EF, यानी कि फर्स्ट स्क्वायर का जो साइड का जो लेंथ होगा सेम लेंथ सेकेंड स्क्वायर के साइड का हो तो दोनों स्क्वायर जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. Now two rectangles are congruent if they have same length and breadth. टू रेक्टेंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उनके लेंथ और ब्रेथ का लेंथ जो है वो सेम हो. Here ABCD and EFGH are two rectangles. If length AB equal to EF and breadth BC is equal to GF, then rectangle ABCD congruent to rectangle EFGH. Next point जो है, two circles are congruent if they have same radii. टू सर्किल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे यदि उनके रेडियस का लेंथ जो है वो सेम हो. यहाँ पर भी टू सर्किल्स को ड्रॉ किया गया है जिसमें फर्स्ट सर्किल के रेडियस को R1 और सेकेंड रेडियस सर्किल के रेडियस को R2 के द्वारा इंडिकेट किया गया है. इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 यानी कि दोनों ही सर्किल का रेडियस इक्वल हो, देन बोथ सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Now two triangles are congruent if and only if one of them can be made to superpose on the other so as to cover it exactly. यहाँ पर superpose का अर्थ हुआ कि पूरी तरह से ढक लेना. तो टू ट्रायंगल्स को हम लोग congruent कहेंगे यदि एक ट्रायंगल दूसरे को पूरी तरह से कवर कर ले, ओवरलैप करे, coincide हो, that is their corresponding sides and corresponding angles are equal. Here two triangles are triangle ABC and triangle DEF. Their corresponding parts, that means
ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो हम लोग लर्न करेंगे वो है साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। इफ टू ट्रायंगल्स हैव two sides and included angle of one equal to the corresponding sides and the included angle of the other, then the triangles are congruent. स्टेटमेंट के अनुसार टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि फर्स्ट ट्रायंगल के टू साइड और इंक्लूडेड एंगल, यहाँ इंक्लूडेड एंगल का सेंस हुआ दोनों साइड के बीच का एंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल के टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल यदि सेकेंड ट्रायंगल के टू साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल्स को लेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी लिया गया है और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ को लिया गया है, जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी को लिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो गिवन है उसको हम लोग पहले नोट डाउन करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। प्रूफ: प्लेस्ड ट्रायंगल ए बी सी ऑन ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट ए फॉल्स ऑन डी। हम लोग ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल डी ई एफ के ऊपर प्लेस्ड करेंगे, रखेंगे, और इस तरह से रखेंगे कि पॉइंट ए जो है, वर्टेक्स ए है ट्रायंगल ए बी सी का, वो डी के ऊपर फॉल करे एंड ए बी एलोंग डी ई, और ए बी जो है वो डी के साथ में। सिंस ए बी इक्वल टू डी सो बी फॉल्स ऑन ई, क्योंकि ए बी जो है वो डी के बराबर है तो बी जो है वो ई के ऊपर फॉल करेगा। Also angle A is equal to D, so AC will fall along DF. एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, therefore AC जो होगा वो DF के ऊपर फॉल करेगा। बट AC is equal to DF जो कि गिवन है, therefore C will fall on F. क्योंकि AC जो है वो DF के बराबर था तो C जो है F के ऊपर फॉल करेगा। Thus AC coincide with DF. therefore BC will coincide with EF, और इसलिए BC जो होगा वो EF पर के साथ coincide होगा, क्योंकि B पहले ही E के ऊपर फॉल कर रहा था और C जो है F के ऊपर फॉल कर रहा है, तो BC EF को coincide करेगा। therefore triangle ABC coincides with triangle DEF and hence triangle ABC congruent to triangle DEF। इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।